حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ایک رشوت خور سرکاری ملازم کو ACB کے حکام نے پکڑ لیا۔ ضلع مڈچل گھٹکیسر منڈل کے چودھری گڑا پنچایت آفس میں رویندر بل کلیکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے سنجے کمار جھا کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے لیے دہلی میں پبلک ریلیشن آفیسر PRO کیا مقرر۔ شہر حیدرآباد و سکندرآباد میں تاجرین گاہکوں کے لیے پریشان، لیکن GST اور کمرشل ٹیکس کے عہدیداروں کی نظریں شہر میں فروخت کی جانے والی حلیم پر مرکوز اور GST کی خصوصی ٹیمیں اس سلسلے میں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ شہر میں حلیم کی فروخت کا جائزہ لے رہی۔ جیو 111 کی تنسیق کے معاملے پر ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے خلاف عوامی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کے ذریعے شہر حیدرآباد کے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے علاوہ جیو 111 کی تنسیق کے سبب ہونے والے نقصانات پر رپورٹ کی تیاری کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جا چکی۔ مجلسی رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کے نرمل اشتعال انگیز تقریر کیس کی سماعت مکمل ہو چکی اور عدالت نے 12 اپریل کو فیصلہ سنانے کا کیا اعلان۔ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار اپنی دوسرے مرحلے کی پرجا سنگرام یاترا کی تیاریوں میں مصروف۔ 14 اپریل سے گدوال ضلع میں یاترا کا ہوگا آغاز۔ ٹالی ووڈ ڈرگز کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے داخل کردہ توہین عدالت کی درخواست پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار اور ڈائریکٹر ایکسائز سرفراز احمد کو ہائی کورٹ نے جاری کی نوٹس۔ تلنگانہ سے دھان خریدی معاملے پر بھینسا شہر میں تلنگانہ وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر KTR کی ہدایت پر TRS کارکنان نے اپنے مکانوں پر سیاہ پرچم لہراتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا درج۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے روڈ نمبر 12 بنجارہ ہلز میں میرا فرٹیلیٹی سیکنڈ برانچ کا کیا افتتاح۔ ایکسائز پولیس نے کملا کانت 32 سال سے 250 گرام بھانگ کی ضبط، جسے قطب اللہ پور کے تحت کندلا کویا ایکس روڈ پر گاڑی کی چیکنگ کے دوران پکڑا گیا تھا۔ رمضان المبارک کے آغاز کے بعد پہلے جمعے کے موقع پر پرانے شہر میں واقع تاریخی مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مصلیان کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ ہندوستان کے عوام پر مہنگائی کی مار جاری، پیٹرول ڈیزل کی آسمان چھوتی قیمتوں کے بعد اب لیمو بھی عام آدمی کے بجٹ سے باہر۔ گرمیوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لیمو کی طلب میں بھی اضافہ۔ آندھرا پردیش حکومت نے گورنمنٹ ڈاکٹرز کی خانگی پریکٹس پر عائد پابندی کرنے کا کیا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں قرارداد کو منظوری دی گئی۔ آندھرا پردیش میں مکمل کابینہ نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی از 9 کابینہ تشکیل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے 2024 کے اسمبلی انتخابات سے قبل کابینہ میں تبدیلی کا کیا فیصلہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एक रिश्वत खोर सरकारी मुलाजिम को एसीबी के हुकाम ने पकड़ लिया। जिले मिर्चल घटकेसर मंडल के चौधरीगुड़ा पंचायत ऑफिस में रविंद्र बिल कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। एंथोनी नामी शख्स अपनी मां के नाम पर जायदाद के म्यूटेशन के लिए इससे रुजू हुआ, जिस पर उसने 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। एंथोनी ने एसीबी हुकाम से शिकायत की और रविंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने संजय कुमार झा को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए दिल्ली में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO मुकर्रर किया है। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। संजय कुमार ने सहारा, समय और रोजनामा जागरण जैसे हिंदी अखबारात के लिए काम किया है। बताया जाता है कि KCR तेलंगाना के वज़ीर आला के कभी कभार दिल्ली के दौरे के मौके पर उन्होंने वहां के हिंदी मीडिया और शुमाली हिंद के लोगों को KCR के बारे में मतला करने के लिए संजय कुमार झा को PRO मुकर्रर किया। रियासती हुकूमत ने दिल्ली में तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर को हिदायत दी कि वो संजय कुमार को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करें। उन्हें माहाना 2 लाख रुपए तनख्वाह भी दी जाएगी। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में ताजरीन ग्राहकों के लिए परेशान है, लेकिन GST और कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों की नजरें शहर में फरोख्त की जाने वाली हलीम पर मरकूज हैं और GST की खुसूसी टीमें इस सिलसिले में तश्कील दी गई हैं, जो कि शहर में हलीम की फरोख्त का जायजा ले रही। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के सरकर्दा हलीम आउटलेट्स की जानिब से फरोख्त की जाने वाली हलीम के बिलों के अदम इजराई और बगैर बिल के कारोबार करने वाले होटल मालिकीन की तिजारत पर गहरी नजर रखने की हिदायत दी गई है। परेशान हाल ताजरीन जो गुज़िश्ता 2 सालों से सूरत हाल इंतहाई अबतर होने के सबब नुकसानात के बावजूद मुलाजमीन को बेदखल नहीं किया था और उनकी गुजर बसर का इंतजाम करते रहते थे, अब सरकारी इदारों का निशाना बने हुए हैं। शहर हैदराबाद को जो गोश्त हलीम की तैयारी में इस्तेमाल के लिए पहुँच रहा है, उसकी तफसीलात भी जमा की जा रही। GST ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद में मौजूद कई सरकर्दा होटलों में बाज होटलों की जिम्मेदारी कमर्शियल टैक्स को तफवीज की गई है, जबकि बाज होटलों की जिम्मेदारी GST के पास है। इसीलिए दोनों महकमों की जानिब से मुश्तरका टीमों की तश्कील के जरिए होटलों में फरोख्त की जाने वाली हलीम पर GST की वसूली और होटलों की जानिब से बगैर बिल के कारोबार के सिलसिले को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे। हैदराबाद व सिकंदराबाद में मौजूद हलीम तैयार करने वाले होटल मालिकीन के मुताबिक बेशतर होटलों की जानिब से GST की अदायगी में कोताही नहीं की जा रही, जबकि महकमे GST और कमर्शियल टैक्स की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा कि शहर की निस्फ से जायद से होटलों से GST की अदायगी का कोई नज़्म नहीं है, बल्कि बाज होटलों की जानिब से ज़ाब्ते की तकमील के लिए GST नंबर हासिल किया गया और बिल की इजराई के मामले में होटलों की जानिब से कोताही का मुजाहरा किया जा रहा। GO 111 की तनसीख के मामले पर रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के खिलाफ अवामी तंजीमें मुतहरिक हो चुकी हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कमेटियों के तश्कील के जरिए शहर हैदराबाद के अवाम में शऊर उजागर करने के अलावा GO 111 की तनसीख के सबब होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट की तैयारी के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। गुज़िश्ता महीने के आखिर में शुरू किए गए इक़दामात में न सिर्फ तालाबों, कुंटों और ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम देने वालों को शामिल किया गया, बल्कि शहर हैदराबाद की तहजीबी व सकाफती निशानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों में भी मुतहरिक करने के अलावा जोग्राफियाई माहिरीन, ज़ेर ज़मीन आब की जाँच करने वाले माहिरीन के अलावा सैलाब और बारिश के सबब जमा होने वाले पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात के नताइज की जाँच करने वाले माहिरीन को इन कमेटियों में शामिल किया गया है, जो कि न सिर्फ रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मुतल्लिक़ महकमे जात से नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि हुकूमत की जानिब से GO 111 की तनसीख के फैसले की सूरत में उसके खिलाफ अदालत से रुजू होने की भी तैयारी कर रहे हैं। मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की निर्मल इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा निर्मल के उस वक्त के सदर मजलिस अजीम बिन यहिया भी अदालत में मौजूद थे। अरकान पार्लियामेंट वो असम्बली के केसों की समाअत के लिए कायम की गई। खुसूसी अदालत ने फरवरी 21 ta 7 मार्च को गवाहों के बयानात कलमबंद करने और समाअत मुकम्मल करने का फैसला किया था, जिसके बाद अदालत ने 38
गवाहों बशमूल पुलिस ओहदेदारों ने अपना बयान कलमबंद करवाया। निर्मल के साबिका इंस्पेक्टर पुलिस लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने अदालत को बताया था कि 22 दिसंबर 2012 को मजलिस की जानिब से NTR स्टेडियम निर्मल में जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ने काबिल एतराज व इश्तियाल अंगेज तकरीर की और दो फिरकों के दरमियान मुनाफरत भी फैलाने की कोशिश की। वकील दिफा और इस्तगासा के वकील के मुबाहिस के बाद खुसूसी अदालत ने इस केस के फैसले को महफूज करते हुए 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार अपनी दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा की तैयारियों में मसरूफ हो चुके हैं। 14 अप्रैल से गढ़वाल जिले में यात्रा का आगाज होगा, जिसे कामयाब बनाने अजला के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। बंडी संजय ने कहा है कि दूसरे मरहले की यात्रा पहले मरहले से ज्यादा कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा के रूट मैप के लिए कायदीन को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ अजला बल्कि हैदराबाद पुराने शहर में बीजेपी ताकत का मुजाहरा करेगी। KCR के खानदानी हुक्मरान के खिलाफ जद्दोजहद पदयात्रा का बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहा है कि KCR हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने मरकज को निशाना बना रही अवाम ने बीजेपी को मुतबादिल के तौर पर तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। टॉलीवुड ड्रग्स केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दाखिल करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। अदालत ने अंदरून 10 यौम तौहीन अदालत के मामले में वजाहत करने की हिदायत दी। मुकदमे की आइंदा समाअत 25 अप्रैल को होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिकायत की है कि ड्रग्स स्कैम से मुतल्लिक कॉल डेटा और डिजिटल रिकॉर्डिंग की तफसीलात देने से तेलंगाना हुकूमत इनकार कर रही है। हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद एक्साइज डिपार्टमेंट ने तफसीलात फराहम नहीं की, जिस पर चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर एक्साइज के खिलाफ तौहीन अदालत की शिकायत की गई। वाज़ेह है कि ड्रग्स स्कैम में कई फिल्मी शख्सियतों के मुलविस होने का शुबा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हुकूमत से तफसीलात तलब की है। तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस मामले की जांच के लिए महकमे एक्साइज के ओहदेदार काफी हैं। रियासत तेलंगाना से धान खरीदी मामले पर भैंसा शहर में तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव की हिदायत पर TRS कारकुनान ने अपने मकानों पर सिया परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और TRS जिले निर्मल सदर G विठल रेड्डी रुकन असम्बली माधुल की क़ियादत में गन्ना भवन व TRS दफ्तर से मोटरसाइकिल एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इस एहतजाज में G मुरली गौड़ साबिक़ा AMC चेयरमैन और दीगर TRS कायदीन के अलावा कारकुनान की कसर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అది కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం పక్షపాత వైఖరి కొనసాగిస్తుందో రైతులకు వ్యతిరేకంగా, ఎందుకంటే రైతులకు పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనము అని చెప్పేసి వారు అనటం వలన తెలంగాణ రైతులకు చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందారు. మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడే కాదు, ఏ పార్టీలో కనీసం 40-50 ఏళ్ళ నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కానీ, జనతాదళ్ ఉన్నప్పుడు కానీ, తర్వాత వాజ్పేయి నేతృత్వంలో BJP ఉన్నా కానీ వరి ధాన్యం కొన్నారు.
ఇది రాజ్యాంగంలో రాశారు. మరి భారత రత్న అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में मीरा फर्टिलिटी सेकंड ब्रांच का इफ्तिताम मिलाया। इस मौके पर डॉक्टर सोमिना रेड्डी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लिप्रोस्कोपिक सर्जन और गाइकोनोलॉजिस्ट मीरा फर्टिलिटी भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मीरा फर्टिलिटी को एक ऐसे माहौल में जदीद ज़रख़ेज़ी की देखभाल फराहम करने के मुस्बित इरादे के साथ कायम किया गया है, जो इन जोड़ों की जिस्मानी, जज्बाती और माली तंदुरुस्ती में मदद करता है, जो उन्हें अपने ख़ानदान की तामीर में मदद करने के लिए मुंतखब करते हैं। आजकल अपने सोसाइटी में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। आजकल के फास्ट पेस लाइफ और एज आगे बढ़े बाद बच्चों के लिए रेडी होना, अपने खाने में पोल्यूशन, अनेक रीज़न्स के वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये फर्टिलिटी के इश्यूज़ को एक इनकन्वीनियंस के जैसा नहीं मानना चाहिए, इसको एक डिसीज़ के तरह मान के करेक्ट फर्टिलिटी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स के वजह से अपने को IUI, IVF के जैसा वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आपको जहाँ पे एथिकल और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल रहता है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेने से जल्दी फर्टिलिटी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज यहाँ पे मीरा फर्टिलिटी के बंजारा हिल्स के ब्रांच को इनॉग्रेट करने के लिए हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री हरीश राव जी आए थे। इनॉग्रेशन के प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। उनके साथ साथ प्रोमिनेंट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर TS राव सर और प्रताप रेड्डी सर भी यहाँ पे आके हमारे ओकेशन को ग्रेस करे हैं। ये मीरा फर्टिलिटी का सेकंड ब्रांच है। हमारा फर्स्ट ब्रांच संतोष नगर LB नगर एरिया में ऑलरेडी है। ये सेकंड ब्रांच है। यहाँ पे फुल फ्लेश्ड फर्टिलिटी सर्विसेज लाइक IVF, IUI, लैप्रोस्कोपी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक्साइज पुलिस ने कमलाकांत नामी 32 साल के शख्स से 250 ग्राम भांग जब्त की है, जिसे कुतुबुल्लाहपुर के तहत कुंदला कोया एक्स रोड पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। उसके साथ मजीद 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में आई है, जिनके नाम देतारी जैन 33 साला और ब्रिटेन चंद्रदास 43 साला बताए गए हैं। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 14.5 किलोग्राम चरस बरामद कर लिया गया। उन तमाम की शिनाख्त उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले के तौर पर की गई है। మేము గట్టి నిఘా పెట్టాము, ఎవరు కూడా స్పీడ్ చేసేలేదు, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. మీ మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేసుకుంటాం. ఫోన్ వస్తుంది అతను ఎవరికి ఫోన్ చేసి ఇతను ఒరిస్సాకి తీసుకుంటారు, 10 ట్రైన్తో ఇతను తీసుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వేరు, తెలంగాణ వేరు. మన ఏరియాలో ఇప్పుడు ఏమో నిజామాబాద్లో లేకుంటే మేడ్చల్లో. आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. एक रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम को ACB के हुकाम ने पकड़ लिया। जिले मिर्चल घटकेसर मंडल के चौधरी गुड़ा पंचायत ऑफिस में रविंद्र बिल कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। तेलंगाना हुकूमत ने संजय कुमार झा को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए दिल्ली में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO किया मुकर्रर। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में ताजरीन ग्राहकों के लिए परेशान, लेकिन GST और कमर्शियल टैक्स के ओहदेदारों की नजरें शहर में फरोख्त की जाने वाली हलीम पर मरकूज और GST की खुसूसी टीमें इस सिलसिले में तश्कील दी गई हैं, जो कि शहर में हलीम की फरोख्त का जायजा ले रही।
जियो 111 की तनसीख के मामले पर रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के खिलाफ अवामी तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील के जरिए शहर हैदराबाद के अवाम में शऊर उजागर करने के अलावा जियो 111 की तनसीख के सबब होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट की तैयारी के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जा चुकी। मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के निर्मल इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी और अदालत ने 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का किया ऐलान। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार अपनी दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा की तैयारियों में मसरूफ। 14 अप्रैल से गढ़वाल जिले में यात्रा का होगा आगाज। टॉलीवुड ड्रग्स केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दाखिल करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद को हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस। तेलंगाना से धान खरीदी मामले पर भैंसा शहर में तेलंगाना वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR की हिदायत पर TRS कारकुनान ने अपने मकानों पर सियाह परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया दर्ज। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में मीरा फर्टिलिटी सेकेंड ब्रांच का किया इफ्तिताह। एक्साइज पुलिस ने कमलाकांत 32 साल से 250 ग्राम भांग की जब्त, जिसे कुतुबुल्लापुर के तहत कुंदला कोया एक्स रोड पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। रमजान अल मुबारक के आगाज के बाद पहले जुमे के मौके पर पुराने शहर में वाक़ तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले मुसल्लियान की कसीर तादाद देखी गई। हिंदुस्तान की आवाम पर महंगाई की मार जारी। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अब लीमू भी आम आदमी के बजट से बाहर। गर्मियों में बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लीमू की तलब में भी इजाफा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने गवर्नमेंट डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस पर आयद पाबंदी करने का किया फैसला। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में इस सिलसिले में करारदाद को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश में मुकम्मल काबीना ने इस्तीफा पेश कर दिया। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी अज़सर 9 काबीना तश्कील देंगे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 2024 के असम्बली इंतखाबात से कबल काबीना में तब्दीली का किया फैसला। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।